Welcome back, my young intellectuals. This is Hershey, your science educator. Today we are starting with chapter number 6, which is respiration in organisms. So quickly see the topics that we are going to cover today in this chapter. The topics are what is respiration, some respiratory diseases, human respiratory system, respiration in animals, types of respiration and exchanges of gases in plants. So we all think that breathing and respiration is one is the same thing. No, it is not like so. So there is a lot of difference between breathing and respiration. Breathing is simply inhaling and exhaling. That's it. But what happens when we inhale, right? And how this different reactions or chemical reactions are taking place in our body. So this is called respiration. We will see respiration in plants and animals as well as in human body. It's a long chapter. Be focused and very interesting, right? So before starting the chapter, we have the warm-up exercise in which matching is given. Column 1 and column 2, we need to match the options with the correct one. Like first is butterfly. So how a butterfly is an insect. An insect breathe or respire through its spiracles, right? So insects have spiracles on their body. Earthworm respire through skin. Sparrow is a bird. It respires through lungs, and fish through gills, right? So the respiration is the second process, while as breathing is the first process. Through breathing, we inhale the oxygen, and when it enters to our body, it do lot many chemical changes occurs in our body. So this is aquatic animal. Frog is aquatic. A frog is actually a amphibian, right? So it can stay on land as well as in water. That is why we call it amphibian. And when it is in water, then it breathes with skin. And when it is means frog on land, it breathes through lungs. This is blue whale, and whales are also breathing with the help of lungs like us. Introduction. You may have observed that individual engaged in running, jogging or brisk walking on the track tend to breathe rapidly. So जब हम कोई physical exercise करते हैं या running करते हैं, jogging करते हैं, कुछ भी और physical activities करते हैं, तो क्या होता है, हम ज़्यादा fast breathe करते हैं, right? This phenomena is closely connected to our respiratory system. When we undertake physical activities, our respiratory system experience increased demand of oxygen. और demand किसकी बढ़ जाती है? Oxygen की. It heightened physical exertion requires our body to generate more energy, and for this process an increased supply of oxygen is essential. तो हमें क्यों ये ऑक्सीजन की डिमांड क्यों इंक्रीज होती है? It is increased because our body needs more energy. और जब हम हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी सफिशिएंट होनी चाहिए. So in order to obtain more oxygen, our respiratory system intensifies its activity through faster breathing. It is this respiratory response is not exclusive to human beings. It is shared characteristics among all the living organisms. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस के केस में होता है, ये एनिमल्स के केस में भी होता है. जब एनिमल फास्ट भागते हैं, रन करते हैं, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. The act of breathing facilitated by respiratory system is vital for survival and sustenance of various life forms. So let's delve into the understanding of respiration and the respiratory system in living organisms. So जब हम heavy workout करते हैं, heavy exercises करते हैं, comparatively अगर हम normal खड़े हैं तो हमें उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जब हम physical exercises ज़्यादा करते हैं, we feel exhausted, we need more energy,
and to produce more energy we need more supply of oxygen. So what is respiration? Respiration क्या होता है? We have learned that all living organisms get energy from food. This we all know. खाना क्यों खाते हैं? To get energy. Food enters the cells in the form of tiny soluble molecules after passing through a long digestive system. So digestive system हमने पढ़ा था, elementary canal from the mouth till anus. So कितना लंबा प्रोसेस होता है फूड को डाइजेस्ट करने का. When food got digested, उसके बाद वो assimilate होता है, absorb होता है, assimilate होता है, और तब हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट. सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, इट एंटर्स द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कंबाइंस विद फूड पार्टिकल्स, और फॉर्म चेंज हो जाती है. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज का प्रोसेस है, क्योंकि फूड जो हम खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन और ये जो होता है ये सेल्स में होता है, यानी ये रिएक्शन जो होता है वो सेल में होता है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है. So food is released during the respiration. During this process some waste product like carbon dioxide and water are also released. So respiration is process of taking in oxygen. ये एक part हुआ. Breathe in, breathe out is the part of respiration only, right? So we are taking in oxygen, using it for release to energy, form break down the food and waste products like carbon dioxide and water. तो ये बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. When food is reacting with oxygen, energy is released and byproducts are carbon dioxide and water are formed. तो सेम रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन यहाँ दी हुई है. ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द वेज बाय प्रोडक्ट्स, और एनर्जी इज रिलीज. तो अभी तक हम क्या सोचते थे कि सिर्फ जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं वो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एक्चुअली में रेस्पिरेशन डिफरेंट है. रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होती रहती है. सो 2 टाइप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेकंड होता है सेल्यूलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. तो ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो फर्स्ट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Simple, this is called breathing. So inhaling oxygen rich air through the nose, it is called inhalation, and giving carbon dioxide through the nose, this is called exhalation. So activity is given, you exhale carbon dioxide during breathing. Take a glass tumbler half filled with lime water. अब हम जो ब्रीद आउट कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और गैस है, उसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी है. हम एक टम्बलर लेंगे, उसके अंदर हम उसमें लाइम वाटर फिल कर देंगे. टेक अ स्ट्रॉ एंड ब्रीद आउट इनटू लाइम वाटर. तो क्या होगा? लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा, राइट? सो इट टर्न्स मिल्की. दिस मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर confirms that presence of carbon dioxide in your breath. So carbon dioxide makes lime water milky due to the formation of calcium carbonate, right? So carbonate, calcium carbonate जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, लाइम वाटर का कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है in the presence of carbon dioxide. One more activity, hold your breath by closing your nostril and your mouth. Can you hold your breath for a long time? Do you feel suffocated after some time? So you can realize how essential is breathing for us. अगर हम अपने नोज को पकड़ें और ब्रीथ थोड़ी देर के लिए करना रोक दें तो कुछ सेकंड्स के बाद हमें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होना शुरू होता है. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है, और ब्रीदिंग हमने पढ़ा कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग.
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग होता कैसे है हमारी बॉडी में, कैसे जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो वर्क करती है. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारे जो लंग्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. एक सिंपल लैंग्वेज में एक प्लेट है जिसके ऊपर दोनों लंग्स रेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो डायफ्राम डिसेंड्स टुवर्ड्स द एब्डोमेन. डिसेंड्स का मतलब नीचे आता है, राइट. जैसे ही हम इनहेल करते हैं, इनहेल करेंगे तो एयर को फिल होने के लिए स्पेस चाहिए, राइट. लंग्स में एयर होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं. सो एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, डायफ्राम जिसके ऊपर हमारे दोनों लंग्स रेस्ट करते हैं, सो डायफ्राम नीचे की तरफ डिसेंड होता है एब्डोमेन की साइड, राइट. सो इट डिसेंड्स टुवर्ड्स द एब्डोमेन and intercostal muscles located between the ribs and diaphragm move downwards. और जो muscles होती हैं वो सारी क्या होगी, नीचे की तरफ downwards descend हो जाएंगी, जिसकी वजह से rib cage में space बनेगा और lungs expand होंगे, right. So causing the ribs to expand outwards, this coordinate action creates space within chest cavity. स्पेस बनेगा, लंग्स एक्सपैंड होंगे, लंग्स एक्सपैंड होंगे तो ऑक्सीजन फिल होगा, राइट. सो अलाउइंग एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स थ्रू द नोज. सो एक्सेलेशन जब हम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, रिब केज अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिब केज जो मसल्स होती हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और स्पेस श्रिंक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम एंड द रिब्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनहेलेशन. एज अ रिजल्ट द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस इन साइज लीडिंग टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज. दोनों इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे आएगा, एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर जाएगा. इनहेलेशन में मसल्स नीचे की तरफ डिसेंट होंगी और एक्सहेलेशन में अपवर्ड डायरेक्शन में. इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी और एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी. सो डायफ्राम इज दिस, इट्स अ प्लेट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं, राइट. सो अब देखो इसमें इनहेलेशन में नीचे की तरफ हो गया डिसेंट और एक्सहेलेशन में ऊपर की साइड ऊपर की तरफ चला जाता है, राइट. सो ब्रीथ आउट सम एयर थ्रू माउथ इनटू द क्लीन मिरर. कुछ जब हम मिरर है, मिरर के ऊपर जब हम इस तरह से कुछ ब्रीथ आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं ग्लास के ऊपर, राइट. वो क्यों आती है, क्यों, क्योंकि एक्सहेलेशन में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं. वन मोर एक्टिविटी इज गिवन हेयर, जो उसमें हम एक बॉटल लेंगे, उसमें इस तरीके का एक पाइप डालेंगे, उसमें 2 बलून्स लगा देंगे और नीचे एक शीट लगाएंगे, रबर शीट, और ऊपर कॉक से क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे. सो जैसे ही जब हम ये रबर शीट को नीचे की तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, एयर फिल हो जाएगी बलून्स में, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो बलून्स में से एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगी. सो सेम मैकेनिज्म हमारा फॉलो होता है इन आवर बॉडी. सो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जब एक बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर adults and over 18 years, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ब्रीदिंग का मतलब, सो एक बार हम इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं, इन दोनों को मिलाकर 1 ब्रेथ होता है, राइट. सो नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन अ मिनट, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. 1 मिनट में हम कितने ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब इनहेल और एक्सहेल, एक ब्रेथ होगा ये, राइट. सो अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. सो इट इंक्लूड्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन. सो एक बेबी बॉर्न होता है, उसको 30 to 40 टाइम क्या करता है, उसका ब्रीदिंग रेट होता है 30 to 40 टाइम्स इन अ मिनट. उसके बाद 1 साल तक 30 to 40 टाइम्स ही रहता है, और उसके 1 to 3 ईयर थोड़ा सा डिक्रीज होता है. सो ये होता है
23 to 35 तक, फिर 3 to 6 years तक होता है 20 to 30, उसके बाद फाइनली जब 6 to 18 12 years तक में 18 to 26 times in a minute थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होता रहता है, क्योंकि जो लंग्स हैं वो लार्ज होते रहते हैं और ज़्यादा एयर अंदर आती है लंग्स में, राइट। बच्चे शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, छोटी छोटी ब्रेथ लेते हैं, तो इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। 12 to 17 ईयर्स में 12 to 20 टाइम्स, और 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स कितना होता है 12 to 20 टाइम्स इन अ मिनट, राइट। सो और जब हम फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं तो ये और बढ़ जाता है, राइट। सो काउंट योर ब्रीदिंग रेट, note the time and in watch and start counting the number of breaths per minute। तो 1 मिनट में आप वॉच स्टार्ट करो या टाइमर स्टार्ट करो और आप देखो कि कितने टाइम आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, राइट। सो 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन काउंट्स एज 1 ब्रेथ, राइट। तो आपको पता चलेगा कि आप कितना, आपका ब्रीदिंग रेट कितना है, राइट। दिस इज द एक्टिविटी। So inhaled air contains 21% of oxygen and 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट इज 21%, और इसमें कुछ परसेंट 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है। सो व्हेन वी एक्सहेल 16.4% ऑक्सीजन हम एक्सहेल करते हैं, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर वेपर। तो हमने एक्टिविटी में देखा था ना, सो जब हम एक्सहेल करते हैं किसी ग्लास के ऊपर तो क्या होता है, क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्रेथ में, तो क्या होता है ड्रॉपलेट्स बन जाती है, क्योंकि वो वार्म होती है। वार्म होने के बाद जब वो कंडेंस होती है तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया विच वाज ब्रीदिंग पार्ट, राइट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड अप विद द नंबर ऑफ ऑर्गन्स। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेशन में डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो द ऑर्गन्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। सो ये सब ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। First is nasal cavity. Nasal cavity is this one only, right? So air enters through nose, through the nostril, leading it to the nasal cavity. तो हम अपने nostril से जब inhale करते हैं तो सांस सबसे पहले कहाँ आती है, nasal cavity में आती है। So this is nasal cavity and nostrils। हमारे 2 nostrils होते हैं nose में। During inhalation, tiny hairs in the nose traps small particles of dirt, preventing them from progressing deeper into the body। so air के अंदर dust भी होती है, कुछ और germs भी होते हैं। तो हमारे nostrils में, हमारे nose में, nasal cavity में क्या होता है, hair like structure होते हैं। तो hair like structure क्या होता है, वहाँ पर mucus भी produce होता है और hairs क्या करते हैं, dust particles को अंदर जाने से भी रोकते हैं। So the nasal cavity is divided into right and left passages. Within the nasal cavity, the incoming air undergoes a process of warming and moistening before reaching the lungs। तो अब हमने जो ब्रीथ इन किया है वो ब्रीथ इन क्या होगा, म्यूकस, यानी म्यूकस से और हेयर से पास होकर जो जर्म्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो यहीं रुक जाएंगे। और हमारी जो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ठंडी हवा में भी सांस लेते हैं, राइट। तो क्या होता है, वार्मिंग प्रोसेस होता है। हमारी जो एयर जो हमने ब्रीद इन किया है वो वार्म हो जाती है और उसके बाद वो लंग्स तक पहुंचती है। एयर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन थ्रू द माउथ, द 2 एंट्री पॉइंट्स फॉर एयर नेमली द नेजल कैविटी एंड माउथ। सो कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं जब प्रॉब्लम होता है, लाइक अगर आपको कोल्ड हो गया है, आपके नेजल कैविटीज ब्लॉक हैं, तो क्या करते हैं, वी ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। सो कन्वर्ज एट अ फायरिंग्स और थ्रोट। सो दोनों नेजल कैविटी और हमारा, अगर हम मुंह से भी सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेथ कहाँ जाएगा, फायरिंग्स में, राइट। सो दिस इज नोन एज फायरिंग्स, जो हमारे
थ्रोट वाले पार्ट में होता है. सो कन्वर्ज एट द फेरिंग्स और थ्रोट सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नोज एंड माउथ. Towards the base of the pharynx, the pathway splits into two separate passages. One is for food and another is for wind. So तब वहाँ pharynx के बाद क्या होता है, दो कैविटीज में डिवाइड हो जाता है. एक फूड पाइप हो जाता है, इसोफेगस, और एक विंड पाइप बन जाता है. राइट. सो ये pharynx है. उसके बाद लैरिंग्स होता है. pharynx के बाद लैरिंग्स. लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है और वहाँ से फिर क्या होता है, दो कैविटीज में डिवाइड हो जाता है, विंड पाइप एंड फूड पाइप. और उस पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं. एपिग्लोटस क्या करता है कि फूड को विंड पाइप में आने से रोकता है. राइट. अब उसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या होगा, ये ट्रैकिया होता है नेक्स्ट, और देन इट डिवाइड्स इनटू टू. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस. राइट. एक लेफ्ट ब्रोंकस, एक राइट ब्रोंकस, और फिर उसके बाद जो ये ब्रोंकस होते हैं ये लंग्स में ओपन होते हैं. राइट. सो लंग, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. राइट. सो द pharynx is part of the digestive system as well as the respiratory system because it carries both food and air. So जो भी हम माउथ कैविटी से हमने फूड खाया या हमने इनहेल किया. राइट. इनहेल मेनली तो हम नोज से करते हैं, बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमें माउथ से भी करना पड़ता है. तो उस केस में नेजल से या माउथ कैविटी से जो हम इनहेल करते हैं या जो हम खाना खाते हैं माउथ कैविटी से, वो पहले जाता है pharynx में. तो pharynx इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. दोनों का ही पार्ट है. आफ्टर दैट larynx इज द नेक्स्ट ऑर्गन. larynx क्या होता है, pharynx जो है वो फिर larynx में ओपन होता है, और यू कैन से आफ्टर pharynx और pharynx is opening into the larynx. राइट. larynx क्या होता है, इट इज अ वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स में आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. कॉन्स्टिट्यूट द अपर सेक्शन ऑफ द wind pipe. So short tube houses a pair of vocal cords that vibrate producing sound. तो हमने देखा था साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एयर से ही होता है. सांस लेते हैं एंड इट कम्स टू द वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, एंड देन साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. To safeguard against the entry of food and liquids into windpipe, a small flap-like tissue which is known as epiglottis cover the opening from the pharynx to larynx. एक ओपनिंग होती है एपिग्लोटिस जो क्या करती है, फूड को विंड पाइप में एंटर करने से रोकती है. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. सो ट्रैकिया हमने देखा था. आई विल टेक यू टू द पिक्चर अगेन. ये ब्लू पार्ट, दिस इज नोन एज ट्रैकिया. ये ब्लू पार्ट इज द ट्रैकिया. सो ट्रैकिया और विंड पाइप, और इट इज अ सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब. ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं. ट्रैकिया और विंड पाइप, अ सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लैरिंक्स. सो लैरिंक्स से नीचे पहले pharynx है, pharynx के बाद larynx है, और larynx के बाद trachea है. This is also known as windpipe. So it is about 12 centimeters in length and 2.5 centimeters in diameter. It lies partly in neck and partly in the chest cavity. कुछ part इसका neck में होता है और कुछ फिर chest cavity में होता है. The trachea is also lined with cilia. सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विंड पाइप में. तो क्या होता है कि अगर गलती से खाना विंड पाइप में आ जाता है तो क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो खाने को क्या करते हैं, वापस बाहर फेंक देते हैं ताकि वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो लंग्स तक ना पहुंच पाए. राइट. सो द ट्रैकिया इज ऑल्सो लाइन्ड विद सीलिया विच स्वीप्स फ्लूइड्स फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स आउट of the airways so that they stay out of the lungs. The trachea divides into two bronchi. Trachea अब two bronchi में divide हो जाएगा. ये trachea है, it is dividing into two, और single में उसको bronchus बोलते हैं और plural form उसका bronchi होता है. तो two bronchus
कलेक्टिवली या प्लूरल फॉर्म में हम उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, राइट। सो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, सो दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई which connect to the lungs. In the lungs, the bronchi branch into smaller bronchi and even smaller tubes called bronchioles. अब bronchi जो होता है वो मेन ट्यूब्स होते हैं और फिर उसकी सब ब्रांचेस बनती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स किससे अटैच होते हैं? एल्वियोलाई से। So bronchioles end in tiny air sacs called alveoli which are present in lungs. So ये आप छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हो, these are बैग लाइक स्ट्रक्चर्स और इनको बोलते हैं एल्वियोलाइज, राइट। सो मेन क्या हुआ? ट्रैकिया डिवाइड हुआ आगे लेफ्ट एंड राइट में, और इसको हम बोलते हैं, ट्रैकिया को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होकर इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। फिर आगे फर्दर सब डिवाइड होते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स किसके साथ अटैच होते हैं? ब्रोंकियोल्स के साथ बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाइज कहते हैं। एल्वियोलाइज में बहुत थिन ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है जो कि एल्वियोलाइज से अटैच होते हैं। तो जो फाइनली ऑक्सीजन एल्वियोलाइज तक पहुंचती है तो क्या होता है? फिर वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाइज की, तो डायरेक्ट फिर ऑक्सीजन क्या करती है? उस थिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड से मिक्स हो जाती है, राइट। तो एल्वियोलाइज मेन होता है, एल्वियोलाइज के में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स आर 2 in numbers and about the size of a फुटबॉल। एक फुटबॉल के साइज के होते हैं और 2 लंग्स होते हैं एक पर्सन में। अबाउट 300-400 मिलियन एल्वियोलाइज इन लंग्स, इन ईच लंग, राइट। कितनी सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं एक लंग में? 300 to 400 एल्वियोलाइज, मिलियन एल्वियोलाइज। So alveoli are the site of actual gas exchange. The alveoli are richly supplied with blood vessels. There is very fine network of blood vessels surrounding each alveolus. So single में alveolus बोलते हैं और plural form होता है alveoli. Oxygen passes easily through the thin walls of the alveoli into these blood vessels. तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो आती है वेंट पाइप के थ्रू नेजल कैविटी और माउथ कैविटी से फैरिंग्स में आएगी, फैरिंग्स से लैरिंग्स में आएगी, और फिर ट्रैकिया में आएगी, फिर ब्रोंकस में आएगी, और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल में आएगी, और ब्रोंकियोल के साथ एयर सैक्स अटैच हैं एल्वियोलाइज, और एल्वियोलाइज में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, और फाइनली ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, राइट। सो ऑक्सीजन passes easily through the thin walls of the alveoli into these blood vessels. The carbon dioxide transported by blood from all parts of the body passes into the alveoli. इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है जब हम एक्सहेल करते हैं, राइट। सो ब्लड से क्या होता है? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में आएंगी, एल्वियोलाइज से ब्रोंकियोल्स में आएंगी, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस में आएंगी, ब्रोंकस से कहाँ आएगा? ब्रोंकस से आएगा लारिंग्स, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर लारिंग्स एंड देन फैरिंग्स एंड देन नेजल कैविटी से आउट हो जाएगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस फॉलो होगा। सो व्हाइल एक्सहेलिंग वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर लंग्स. दिस होल प्रोसेस टेक्स वेरी लेस टाइम, राइट। सो इसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, राइट। एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना, और 1 मिनट में कितने ब्रेथ हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। तो ये बहुत फास्ट होता है, राइट। द लंग्स ऑल्सो कंटेन इलास्टिक टिश्यू विच अलाउ देम टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट विदाउट लूजिंग देयर शेप। इलास्टिक मसल्स होने की वजह से क्या होता है? लंग्स क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो वो एक्सपैंड करते हैं, राइट, यानी कि इन्फ्लेट करते हैं, और फिर जब
हम एक्सहेल कर देते हैं तो कैसे हो जाते हैं, डीफ्लेट हो जाते हैं, यानी कि श्रिंक हो जाते हैं. सो अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा encloses the lungs from outside for protection. So pleura is a protective layer for lungs. Internal और cellular respiration कैसे होगा अब, right? So we have studied the body of living things is made up of cell. सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी बॉडी की, किसी एनिमल की, ह्यूमन बीइंग्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. द एयर वी इनहेल इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी. और रेस्पिरेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, राइट? सो इट रीचेस टू द सेल्स इन आवर बॉडी. इन द सेल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी. और सेल में ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है, राइट? सो सेल में जब फूड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जाती है तो रिएक्शन होता है. रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और बाय प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. Thus the process of breakdown of food in cell with the release of energy, this is called cellular respiration or internal respiration. So that is why, क्योंकि respiration कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को सेल्युलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. सेल्युलर रेस्पिरेशन अकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, हेंस इट इज कॉल्ड aerobic respiration. We will read more about this later. Aerobic और anaerobic दो तरीके का respiration होता है. Aerobic respiration जहाँ पर presence of oxygen होती है, anaerobic respiration जहाँ absence of oxygen यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ anaerobic respiration होता है. जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स. हीमोग्लोबिन फाउंड इन द ब्लड कंबाइंस विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वियोलाई फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो अब क्या होता है, एल्वियोलाइज से थिन मेम्ब्रेन से क्या होता है, ऑक्सीजन पास होकर कहाँ मिलती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है. सो व्हेन ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद द ब्लड, सो दिस ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट? सो इस ब्लड को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज सब्सिक्वेंटली पम्प्ड टू ऑल द सेल थ्रू आउट द बॉडी बाय हार्ट. और अब क्या होता है, क्योंकि ब्लड ही एक मीडियम है जो सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है, और ब्लड को पंप करने का काम किसका है, हार्ट का. सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से ब्लड में मिक्स हुई है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped by the heart and then it reaches to the cells of our body. So within the cell, the oxygen carried by the blood combines with glucose molecules producing energy, and this is called metabolic process. Carbon dioxide and waters are produced as the byproduct, right? So this is the equation. Glucose, which is food, is reacting with oxygen. What is formed? Carbon dioxide, water, and energy is released, right children? Now difference between breathing and respiration. breathing और respiration में क्या फर्क होता है? breathing जो होती है ये physical process है, respiration chemical process है. breathing में oxygen is taken in and carbon dioxide is taken out, और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है. इन ब्रीदिंग इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स और ये इनसाइड द सेल्स है. देयर इज नो एनर्जी रिलीज और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. एंजाइम्स मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस. सो ब्रीदिंग में डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जबकि एनर्जी रिलीज में एंजाइम्स पार्टिसिपेट
करते हैं. So these are some difference between breathing and respiration. Now it must be clear to all of you कि breathing और respiration दोनों different processes हैं. So one more activity has been given here in which we need to take two flasks, flask 1 and flask 2. So in this flask, in first flask we will fill the germinating seeds. जो seeds germinate हो चुके हैं वो सीड्स फिल करेंगे और सेकेंड फ्लास्क में हम बॉइल्ड सीड्स फिल करेंगे, राइट. और इसके ऊपर हम कॉटन लगाएंगे, कॉक की हेल्प से इसको सील कर देंगे कॉटन लगाकर, एंड देन इसमें एक थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे, राइट. और इसको एक दिन के लिए और कुछ घंटों के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे. तो क्या होगा, वी विल सी कि जो फर्स्ट फ्लास्क है जिसमें जर्मिनेटेड सीड्स हैं उसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट. और इसमें सेम रहता है, इसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता है. सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जर्मिनेटेड सीड्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. सो यू कैन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर इन द फ्लास्क कंटेनिंग जर्मिनेटिंग सीड्स while there is no change in the temperature in the flask containing boiled seeds. So this rise in temperature is the result of the heat released during the process of respiration of the germinating seed. So this shows that heat is liberated during respiration. So respiration के time पर क्या होता है, heat release होती है. तो इस वजह से फ्लास्क 1 का टेम्परेचर राइज हो गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर. उसमें क्या क्या कंपोनेंट कितने परसेंट में होते हैं. सो द एयर वी इनहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और इट इज इम्पॉर्टेंट टू दीज गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. सो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम इनहेल करते हैं सो 78% नाइट्रोजन इनहेल होता है, तो इन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. सो इनहेलेशन के टाइम पर 78% हम इनहेल करते हैं और नाइट्रोजन, और सेम नाइट्रोजन एक्सेल हो जाती है. सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वी आर exhaling as well because our body is not using the nitrogen. Next gas is coming in which is oxygen. So it contributes 21%. 21% हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल के टाइम पर 16.4% ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% 4. और जब हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, सो इसका परसेंटेज इंक्रीज होकर 4.4% हो जाता है. वाटर वेपर वेरीज और सेचुरेटेड, वाटर वेपर्स भी बाहर आती हैं, एक्सहेल हम करते हैं, राइट. सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास हमने भी पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होती है. If the brain is deprived of oxygen for a few minutes, the parts of the brain can be permanently damaged. If oxygen deprivation continues, the person can become brain dead. अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कुछ मिनट्स के लिए भी अगर ब्लॉक होता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो परमानेंट हमारा जो ब्रेन है वो डेड हो सकता है, राइट. एरोबिक रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. In normal conditions, aerobic respiration occurs in our body and food gets completely oxidized and energy is released. तो respiration process depend है ऑक्सीजन पर, राइट. सो जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तब एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको बोलते हैं, और कंप्लीट एनर्जी मिलती है. यानी इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि फूड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, राइट. सो वी हैव रेड अबाउट दिस अंडर सेल्युलर रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू द रिलीज energy from food.
और इसका ऑपोजिट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना यानी ऑक्सीजन एब्सेंट होने पर ये रेस्पिरेशन होता है। और ये तब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिमांड ज़्यादा होती है बट उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, कोई स्विमिंग करते हैं और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है बट हमारी बॉडी उतना डिलीवर नहीं कर पाती है, यानी कि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता उस टाइम पर, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड लीड करता है क्रैम्प्स को। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स, इनकम्प्लीट, राइट। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, सो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनकम्प्लीट होता है, सो एनर्जी हमें कम मिलती है। एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी लेस as compared to the aerobic respiration. The products formed are alcohol and carbon dioxide, right? So जैसे aerobic respiration में water and carbon dioxide and energy release होती है, यहाँ पर alcohol form होता है। anaerobic respiration में alcohol and carbon dioxide form होता है। So इसकी equation है ग्लूकोज विच इज़ फूड, और अगर हमें विदाउट ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, सो व्हाट इज फॉर्म्ड? एल्कोहल इज फॉर्म्ड और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी वी वुड बी गेटिंग। सो वाटर की जगह एल्कोहल फॉर्मेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, so our muscles can engage in anaerobic respiration under certain circumstances, such as when there is temporary shortage of oxygen. So this oxygen deficit may arise during intense physical activities like running, cycling, weightlifting, where the demand for oxygen in the body is high but the supply is limited. तो उस केस में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा which leads to cramps. So in the above reaction, glucose does not undergo complete breakdown, leading to the production of lactic acid due to strenuous muscles activity. When engaged in these activities like running, the body generates a significant amount of lactic acid that cannot be swiftly eliminated from the muscles. तो हमारी मसल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बहुत इजीली नहीं निकल पाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें हॉट वाटर बाथ लेनी होती है, या फिर मसल्स को मसाज करना होता है। देन इट इज like the person would be getting relief. So a hot water bath or massage enhances blood circulation in the muscles, allowing more oxygen to enter the cells, और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, and oxygen supply the muscle cells can fully break down the lactic acid into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जब हम मसाज करते हैं या हॉट वाटर से बाथ लेते हैं, तो क्या होता है? मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई मीन्स मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ऑक्सीजन मिल जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, when oxygen is not available, yeast can respire anaerobically. Anaerobically means absence of oxygen. So without air or oxygen, yeast can respire in both ways, right? So दोनों तरीके से कर सकते हैं, aerobic respiration भी कर सकते हैं,
एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. सो यीस्ट गेट्स मोस्ट एनर्जी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, बट व्हेन इट रन्स आउट ऑफ ऑक्सीजन इट डज नॉट डाई. अब अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, हम मर जाते हैं. बट यीस्ट सर्वाइव करता है. यीस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भी रेस्पिरेशन कर लेता है. सो इट कैन कंटिन्यू टू रेस्पायर एनारोबिकली. यीस्ट प्रोड्यूस एल्कोहल when it respires anaerobically and ultimately the alcohol will kill the yeast. वो respiration से तो नहीं मरता है, बट जो एल्कोहल फॉर्म होता है वो एल्कोहल यीस्ट को किल कर देता है, राइट. सो एनारोबिकली और एरोबिकली दोनों तरीके से रेस्पिरेशन होता है यीस्ट में. एक्टिविटी टाइम, तो एक हम ये इस तरीके का अब हम चेक करेंगे कि यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं या नहीं करते हैं. सो टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क एंड 2 टेस्ट ट्यूब्स. हमने ये 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं और 2 ही कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, ए एंड बी. और इसमें हमने कुछ वाटर फिल किया है और इस वाटर को बॉयल कर लिया है, ठीक है. सो फिल बोथ. When water gets cooled in both the flasks, open the seal and dissolve 1 spoon glucose in each flask. तो हमने क्या किया, पहले पानी भरा, हाफ ऑफ फ्लास्क हमने पानी भरा, उसको सील कर दिया. इस तरीके से अरेंजमेंट करना है. टेस्ट ट्यूब्स यहाँ कॉक से हमने इसको सील कर दिया और कॉक के अंदर से हमने एक छोटी ट्यूब है जो इस टेस्ट ट्यूब में अटैच होती है जिसमें कि लाइम वाटर है, राइट. यहाँ दोनों साइड में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर लाइम वाटर फिल किया और कॉक की हेल्प से, एक छोटी ट्यूब्स की हेल्प से इसमें कनेक्ट कर दिया, राइट. पानी को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको छोड़ दिया, वो ठंडा हो गया. उसके बाद हमने सील ओपन की और उसमें ग्लूकोज 1-1 चम्मच दोनों फ्लास्क में हमने ग्लूकोज डाल दिया. सो in flask A some live yeast only in flask A. अब हमने ये वाला फ्लास्क A है, इसमें थोड़े से यीस्ट ऐड कर दिया, जबकि फ्लास्क B में हमने यीस्ट को ऐड नहीं किया. Add a few drops of oil in water to prevent oxygen from mixing in the water. तो अब उसमें हमने फ्लास्क A में जिसमें हमने यीस्ट ऐड किया था उसमें हमने 1 स्पून हमने ऑयल का भी ऐड कर दिया. ऑयल का क्यों ऐड किया, क्योंकि ऑयल जो है वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है और ऑक्सीजन को पास नहीं होने देता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, राइट. सो मेक अ होल इन द कॉक एंड इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब इन ईच ऑफ द. ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया. अब हमने क्या किया, इसको 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. इस पूरा सिस्टम को हमने 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. कुछ टाइम बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जिसमें यीस्ट हैं, लाइव यीस्ट हैं, उसमें बबल्स बन रहे हैं. बबल्स बनने का सिंपल मतलब ये है कि गैस रिलीज हो रही है. गैस रिलीज कब होगी, जब रेस्पिरेशन होगा, राइट. सो रेस्पिरेशन हुआ, गैस रिलीज हुई. अब हमें ये चेक करना था कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन. यहाँ हमने ऑक्सीजन ब्लॉक कर दी थी, क्यों, क्योंकि हमने ऑयल डाल दिया था फ्लास्क में. ऑयल की एक लेयर फॉर्म हो गई पानी के ऊपर और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो गई. तो अब ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है दिस विल कम इनटू द लाइम वाटर और ये क्या कर देती है, लाइम वाटर का कलर चेंज कर देती है, मिल्की कर देती है. तो इसका कलर चेंज हो गया, मिल्की हो गया, विच शोज दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं यीस्ट. और यहाँ पर इस फ्लास्क में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट. तो इसका मतलब yeast can respire aerobically and anaerobically both. So difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration it occurs in the presence of oxygen or absence of oxygen. Aerobic respiration में glucose is completely oxidized to release energy, carbon dioxide and water. तो complete oxidation होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड होता है. जो जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसी वजह से एनर्जी ज़्यादा मिलती है इन द केस ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर एल्कोहल की जगह वाटर फॉर्म होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है, और इट अकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिविंग सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल, और सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। इट्स लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वाटर, और यहाँ पर वाटर इज नॉट फॉर्म्ड, और वाटर की जगह क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हमने पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम समझा कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। अब कुछ डिजीजेस भी होती हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। फर्स्ट इज फ्लू। Flu or influenza is caused by the virus that travels through the air when an infected person cough or sneeze. The virus infects our lungs and make our body feel weak. It gives you fever, cough and body ache. So you should stay in bed and drink a lot of fluid when you have flu. तो flu में क्या होता है, coughing, sneezing बहुत होती है, और ये क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन है, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज इज common cold. Common cold is called over 200 different virus that cause inflammation in your upper respiratory tract. Inflammation means swelling आ जाती है कहाँ, upper respiratory tract में. It is the most common respiratory infection. Its symptoms may be mild fever, cough, headache, running nose, sneezing and sore throat. कॉमन कोल्ड के एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारा नॉर्मल कोल्ड हम लोगों को हो जाता है, हल्का फीवर भी हो जाता है, बॉडी एक होता है, खांसी आने लगती है, कॉफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और गले में भी प्रॉब्लम होने लगती है। सो यूजुअली द कोल्ड लास्ट फॉर अराउंड 3 days, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। So there is no cure for cold, but you can try and prevent getting it by staying away from people and who have cold and by eating the right kind of food. It is also important to rest since our body needs energy to fight the virus. ऐसा नहीं है कि cold है तो हमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में वायरस तो है, इन्फेक्शन तो है, वो अपने आप खुल जाएगा। तो थोड़ा रेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ताकि वो वायरस से फाइट कर पाए। नेक्स्ट इज कॉफ. So cough is a symptom of an illness. There are many different types of cough with different causes. Some more common cough, cold, asthma, allergies and pneumonia. So pneumonia में भी, pneumonia में, asthma में, bronchitis, allergies होती हैं, इन सब में इनके साथ coughing का problem होता है. So among the most serious cause of cough are tuberculosis, which is known as TB and whooping cough. So whooping cough और TB ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा coughing का प्रॉब्लम बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज निमोनिया. निमोनिया क्या होता है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई. एल्वियोलाइज तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है. सो कॉमन कोल्ड कॉफ में क्या होता है, इन्फेक्शन हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है, टीबी में लंग्स तक होता है, लेकिन निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन एल्वियोलाइज तक पहुंच जाता है. इट कैन कॉज्ड बाय मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस. Fluids accumulate in alveoli and reduce the space for air. तो क्या होता है, alveoli में swelling fluid भर जाता है, पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर पास करने के लिए स्पेस नहीं मिलता. So if many alveoli are affected, the patient may need oxygen supply from outside.
तो फिर निमोनिया को ट्रीट करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होने की भी कंडीशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर सैक्स यानी एयर एल्वियोलाइज में क्या हुआ है, फ्लूइड फिल हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट डिजीज इज एस्थमा। एस्थमा कहाँ होता है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स गेट कंस्ट्रक्टेड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. Attack of asthma can be triggered by the air pollutants such as chemical fumes and cigarette smoke to which the patient is allergic. So कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एलर्जी होती है. So कभी कभी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके फ्यूम से भी आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा. या फिर जब एयर पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब भी एस्थमा की प्रॉब्लम होती है. तो ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में होती है. नेक्स्ट इज एम्फाइस्मा. सो एम्फिस्मा, द डेलिकेट वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक डाउन. यहाँ पर निमोनिया में क्या होता था, एल्वियोलाइज में पानी भर जाता था, और इस डिजीज में क्या होता है, एल्वियोलाइज क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. वॉल्स ऑफ एल्वियोलाइज ब्रेक डाउन. दिस रिड्यूसेस द एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स. द कंडीशन डेवलप्स स्लोली. धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है. द ग्रेजुअल लॉस ऑफ गैस एक्सचेंज फोर्सेस द हार्ट टू पंप मोर ब्लड टू द लंग्स to meet the body's needs. So this can also lead to the heart failure. अब क्या होता है, ऑक्सीजन अगर ब्लड में नहीं मिक्स हो रहा तो क्या करना पड़ता है, किस पर प्रेशर आता है, हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आता है और हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है. तो हार्ट अगर ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. Chronic bronchitis is the air passage becomes clogged with mucus and this leads to persistent cough. तो क्या होता है, इसमें जो एयर पैसेज होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या म्यूकस फिल हो जाता है और जिसकी वजह से जो पैसेज है वो चोक हो जाता है. पैसेज चौक होने की वजह से ब्रीदिंग में इश्यूज आने लगते हैं और कॉफिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग. सो दीज आर सम डिजीजेस related with the lungs or respiratory system. Last is lung cancer. So lung cancer occurs when damaged cell in lungs increases in numbers. The bad cells called cancer cells get bigger and bigger until they spread and kill the healthy cells in the lungs. So this make it very painful and difficult to breathe and usually causes death. तो लंग कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं, जो कि बैड सेल्स होते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं और धीरे धीरे वो इतने ग्रो करते हैं कि गुड सेल्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और हमारा फुल जो लंग है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है. Science fact, we breathe about 6.15 liters of air every minute, right? 6.15 liters air every minute. We breathe about 9 to 20 times every minute. So through every breath, we breathe in about half a liter of air. We inhale and exhale about 22,000 times per day. एक दिन में 22,000 times हम क्या करते हैं, inhale और exhale करते हैं. We exhale about a half a liter of water vapor in whole day. पूरे दिन में हम आधा लीटर तो water vapor ही exhale कर देते हैं, right? So respiration in animals. So हमने अभी cover किया है respiration in humans. अब रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होता है क्योंकि एनर्जी उनको भी चाहिए. इट इज़ अ लाइफ process. So you have learned that lungs are the sites of actual respiration in humans. In addition to humans, some animals also have lungs for exchange of gases. For example, in most mammals like cats, dogs, horses, monkeys, apes and cows, but all animals do not have lungs for
respiration. Some animals carry out exchange of gases through the cell membrane. कुछ सारे एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं, कुछ एनिमल्स कैसे करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं, कुछ स्किन के थ्रू भी करते हैं, कुछ एयर होल्स और एक्वाटिक फिशेस जो होती हैं पानी में रहने वाली वो किससे करती हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे डू दिस, राइट. सो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. वी ऑल नो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल इन द सेम वे. तो इनमें रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और डिफ्यूजन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है. सो दिस इज हैपनिंग इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज स्किन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक हाइड्रा, लीचेस, अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. लेकिन इनकी स्किन का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, राइट. अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा और एनिमल मर जाएगा, राइट. सो ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरमेंट परमिट्स द मॉइस्ट स्किन of the earthworm and is then transported through the circulatory system. Circulatory system क्या होता है, blood. जो blood पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, this is called circulatory system. So क्या हुआ, अर्थवॉर्म की स्किन से ऑक्सीजन अंदर गई, सर्कुलेटरी सिस्टम ने उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया, and correspondingly carbon dioxide produced by the cell is conveyed through the circulatory system and expelled through the moist skin. और इसी का ही रिवर्स होता है एक्सलेशन, और एक्सलेशन भी moist skin के थ्रू ही होगा. So it is essential to highlight that well-being of earthworm relies on the prevention of skin moisture, as the drying out of their skin could result in death of the earthworm. So skin का moist रहना बहुत ज़रूरी है. फ्रॉग कैसे करता है, फ्रॉग अगर पानी में है तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, और अगर पानी के बाहर है यानी लैंड पर है तो वो अपने लंग्स को यूज करता है, राइट. सो वो दोनों तरीके से रेस्पिरेशन करता है. नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स में. सो एयर होल्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक कॉकरोचेस. सो स्पाइरिकल्स बोलते हैं. स्पाइरिकल्स आर minute openings located at the body surface of an insect. So इसके corners पे क्या होते हैं, छोटे छोटे openings होती हैं, छोटे छोटे holes होते हैं जिनको spiracles कहते हैं, right. So these openings connect to the trachea which then branch into smaller tubes like tracheoles, right. तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे small holes होते हैं, इन होल्स को हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स. और स्पाइरिकल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, ट्रैकिया से. और फिर ट्रैकिया जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्रैकियोल्स कहते हैं, ट्रैकियोल से कनेक्टेड होता है. ट्रैकिया फंक्शंस एज conducts that transport air directly to the cells, facilitating gas exchange. तो ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम मेथड से आ जाता है बाहर. सो ईच सेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट एब्डोमेन इज इक्विप्ड विद अ पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स. द ट्रैकिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ respiratory gases within the insect. Hence, the respiratory system in insect is commonly referred as tracheal system. So, insects में respiratory system को हम क्या बोलते हैं, tracheal system कहते हैं, क्योंकि insects की body पर छोटे छोटे holes होते हैं जिनको हम spiracles बोलते हैं. Spiracle connect होते हैं trachea से, और trachea जो connect होता है tracheole से connect होता है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस
मीडियम से ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट इज गिल्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन. Fish and tadpoles have gills as their respiratory organ. Gills have filament which are like the teeth of the hair comb. So जो हमारी comb होती है, comb में जो teeth like structures होती हैं, उस तरीके का structure होता है gills में. These filaments are full of small capillaries carrying blood. और जो ये teeth like structure होते हैं hair, इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं. वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ एंड फ्लोज ओवर द गिल. तो इसमें क्या होता है, फिश के मुंह से, माउथ से क्या होता है, पानी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है पानी के अंदर, तो माउथ से वाटर एंटर करता है और गिल्स से पास होता है. अब गिल्स में क्या होता है, कैपिलरीज किसको, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और पानी फिर से बाहर आ जाता है. राइट. सो द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर एंटर्स द कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैपिलरीज पासेस आउट इनटू द वाटर. सो गैसियस एक्सचेंज होता है गिल्स की हेल्प से, और फिशेस और टैडपोल्स ब्रीथ करते हैं. Science fact: about 400 million years ago, in an supercontinental called गोंडवाना, यहाँ पर एक जगह थी गोंडवाना, वहाँ पर some fish got stuck in smaller ponds. so, कुछ फिशेस जो थी वो क्या थी, फंस गई थी. कहाँ, एक छोटे से पॉन्ड में फंस गई थी. that were gradually drying up. और पानी उसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे सूखने लगा. so sometimes these ponds were just muddy. बहुत बार क्या होता है कि पानी कम हो जाता है, तो पानी कम होगा तो नीचे मड होती है, तो ये मडी होने लगे, पानी कम होने लगा, और फिश को ब्रीथ करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. सो बॉटम विद पर्टिकुलरली नो वाटर इन देम. सो सम ऑफ दीज फिश डाइड बट सम ऑफ देम इवॉल्व्ड टू यूज देयर लंग्स फॉर ब्रीदिंग. वी कॉल देम लंग फिश. तो उसमें से जो सर्वाइव नहीं कर पाई, यानी मडी वाटर से ब्रीथ नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, वो फिशेस डेड हो गई. लेकिन कुछ फिशेस ने क्या करा, लंग्स को यूज करना स्टार्ट किया ब्रीथ के लिए, वो सरवाइव कर गई और उनको हम लंग फिश बोलते हैं. अब हमने एनिमल्स की बात करी, ह्यूमंस की बात करी. नाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. सो प्लांट्स में भी होता है gaseous exchange. Plants carry out exchange of gases, but almost all their body parts such as leaves, roots, stem, fruits and flowers सबसे gaseous exchange होता है. So first start with leaves. So most of the surface of leaves is covered with waterproof coating which is known as cuticle. Cuticle होता है leaves पर, एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो लीव को प्रोटेक्ट करती है. राइट. सो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक लीव का, तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगा. द क्यूटिकल इज परफोरेटेड विद स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमाटा, और सिंगुलर उसका होता है स्टोमा. ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ पोर बॉर्डर्ड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. तो ये छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं या स्टोमाटा बोलते हैं. इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं. राइट. सो ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होता है जो इस ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है. और ये देखो, ये ओपनिंग खुलती है, बंद हो जाती है. इसमें गार्ड सेल्स ने क्या किया है, उस ओपनिंग को क्लोज कर लिया है. राइट. The pore of the guard cells opens to permit the exchange of gases and it closes to prevent the loss of water. तो ये बंद क्यों होता है, ओपन होते हैं, बंद होते हैं, क्यों होते हैं, जब ओपन होता है तो गैसियस एक्सचेंज होता है, और जब बंद हो जाता है तो वाटर लॉस को रोकने के लिए ये बंद हो जाते हैं. राइट. सो टेक अ लीफी प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर अ फ्यू डेज. Select 2 leaves of the plant and apply the petroleum jelly or Vaseline on the underside of the leaves. Again, keep the plant outside in the sunlight for a week and observe. You will see that leaves die after some time as there is no way for air to enter in them. So,
स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ के नीचे की साइड में होते हैं। और अगर हमने लीफ पर पेट्रोलियम जेली लगाई तो क्या हुआ? पेट्रोलियम जेली लगाने से स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाए या गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से क्या होती है? लीफ मर गई, राइट? तो गैशियस एक्सचेंज किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। नेक्स्ट इज बाय रूट्स। तो रूट्स से भी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर तो लीव से ही होता है स्टोमेटा में, बट स्टिल रूट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द गैशियस स्टेज। सो रूट्स पे क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो रूट इज कवर्ड विद मेनी आउटग्रोथ कोर, दिस इज नोन एज रूट हेयर। सो छोटे छोटे रूट हेयर, जैसे ये रूट हेयर है। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स पर। रूट हेयर इंक्रीजेस द एरिया ऑफ रूट एंड प्रोवाइड अ मॉइस्ट सरफेस फॉर gas exchange. The dissolved oxygen enters the cell of the root hair and passes it to the other cells of the root. तो सॉइल से क्या करते हैं रूट हेयर्स? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और उसको बाकी रूट्स के आगे पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट फ्रॉम द सेल ऑफ रूट थ्रू द रूट हेयर इनटू द सॉइल. The rate of respiration in roots is relatively low. काफ़ी कम होता है रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन, बट येस होता है। रूट हेयर्स की हेल्प से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। Next is by lenticels. The stem of a plant, whether it is flexible stem or tulip or grass or the robust woody bark of a giant sequoia is equipped with tiny pores. So किसी भी तरीके की स्टेम होती है, चाहे वो हार्ड है, सॉफ्ट है और डेलिकेट है, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ऑन वुडी स्टेम दीज ऑफन विजिबल एज स्मॉल वाइट मार्किंग्स नोन एज लेंटिसल्स. सो अगर स्टेम वुडी है तो वुडी स्टेम पर ये इजीली विजिबल होते हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे मार्किंग होती है, इन मार्किंग को क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स बोलते हैं. दीज सेल्स सर्व एज ओपनिंग दैट कनेक्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द इनर टिश्यूज ऑफ द स्टेम. लेंटिसल्स आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑन स्टेम्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन फ्रूट्स. तो फ्रूट्स पर भी लेंटिसल्स होती हैं. एंड ये यहाँ से क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है, राइट? सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, एडिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फॉर इंस्टेंस द स्मॉल ब्राउन डॉट्स ऑन द स्किन ऑफ एन एप्पल or potato are identified as lenticels. Hence, it can be affirmed that each part of the plant independently manages its own requirement for gaseous exchange. So, gaseous exchange के लिए plant में सिर्फ स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेंटिसल्स के थ्रू और रूट्स में रूट हेयर के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. So children, let's memorize what we have learned in this chapter. First is exhalation, give out or exhaling of carbon dioxide rich air through the nose. Inhalation, taking in oxygen rich air through the nose. Aerobic respiration, respiration in the presence of oxygen, and anaerobic respiration is in the absence of oxygen. Oxyhemoglobin, so blood which is rich with oxygen is hemoglobin with oxygen. This is called oxyhemoglobin. Spiracles, these are tiny holes present on the body surface of insect for exchange of gases. Next is tracheae. So spiracles lead to air tubes called tracheae, and this carry air directly to the cells for exchange of gases, and this is called tracheoles. So trachea further branches into these smaller tubes, so these are known as tracheoles. So recall the process of taking in oxygen, using it for energy release, and then eliminating the waste product water and carbon dioxide. This is called respiration. Respiration occurs in two steps, external respiration or internal respiration.
The process of taking in oxygen-rich air into the lungs and giving out carbon dioxide-rich air, which is called breathing or external respiration. The process of breakdown of food in cells with the release of energy, this is called cellular respiration or internal respiration. Next is respiration which occurs in the presence of oxygen, this is called aerobic respiration. And human respiratory, the breakdown of food occurs without oxygen, this is called anaerobic respiration. Human respiratory system consists of nasal cavity, larynx, trachea, bronchi and lungs. Some animals carry out exchange of gases through cell membrane like amoeba, skin like earthworm, air holes like insects and gills in fish. So children, let's do the exercise. First question is choose the correct option. First is in cells food combines with oxygen and releases what? It releases energy, it releases water, it releases carbon dioxide. So the correct answer is all of these. So I am darkening one circle for you, the D1. Similarly, you need to dark rest of the circles, right children? Next is taking in oxygen rich air through the nose, which is called inhalation. When we inhale air, which are of following moves towards the abdomen, so descending क्या हो जाता है? Diaphragm. Which one of the following is not the product of anaerobic respiration? में क्या नहीं बनता है? Water नहीं बनता है. Water की जगह क्या बनता है? Alcohol. Actual gas exchange takes place in the alveoli. And the last one, which of the following is a gill breather? So tadpole is a gill breather. Children, next is fill in the blanks. Air enters the larynx from the pharynx. Next fill up. Trachea divides into two bronchi. Third fill up, with each segment of the abdomen of insect has a pair of spiracles. Fourth fill up, stoma consists of a pore bordered by a pair of guard cells. Fifth fill up is breathing or respiration is the process of taking in oxygen rich air into the lungs and giving out carbon dioxide rich air. Sixth, the number of times a person breathes in a minute, this is called breathing rate. Seventh fill up, cell is the smallest structural and functional unit of our body. And the last but not the least, bronchioles end in the tiny air sacs. These are called alveoli, which are present in lungs. Next question, state T for true and F for false statements. First statement we have, in exhalation, the diaphragm moves upwards and chest muscles relax. So this is true. Next is internal respiration occurs outside the cells, which is false. It occurs inside the cells. Respiration occurs in the absence of oxygen. This is called aerobic respiration. This is false. In absence of oxygen, this is called anaerobic respiration. Fourth one, yeast produce alcohol when it respires anaerobically. This is true. Fifth statement is roots absorb oxygen from the air. This is false. Roots absorb oxygen from the soil. Next is very short answer type question. First question, what are the waste products of respiration? So water and carbon dioxide are the waste product of respiration. Question number 2, how is inhalation different from exhalation? And the answer is inhalation, air is drawn into the lungs, and in exhalation, air is expelled from the lungs. Question number 3, in which type of respiration are alcohol and carbon dioxide formed? So these are the byproducts, and these are formed in anaerobic respiration. Question number 4, name an organism which can respire both aerobically and anaerobically, and it is yeast. Question number 5, name the organs of our respiratory
system. So organs of our respiratory system includes nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Next question, name 5 common respiratory diseases: asthma, bronchitis, influenza, pneumonia and lung cancer. Question number 7, where are the guard cells located? Guard cells surrounds the pore called stomata. Next is, where are lenticels present? So lenticels are present on the plant stem, branches, fruits, right? Children, next is short answer type question. First question under this category is, what happens to the ribs and diaphragm during exhalation? So during exhalation, the ribs moves downwards and inwards and diaphragm relaxes and moves up. Question number 2, how are muscles cramp caused? In anaerobic respiration, lactic acid is produced and gets accumulated in our muscles. It causes muscle cramps. Question number 3, how do our muscle cells respire anaerobically? Muscle cells respire anaerobically when oxygen supply is insufficient to meet energy demand, such as intense exercise. Question number 4, how do fish breathe in water? Fish breathe in water using its gills. Water enters through the mouth and flows over the gills. The dissolved oxygen in the water enters the capillaries and carbon dioxide from the capillaries passes out into the water. Question number 5, what is the difference between exhalation and inhalation? So it is the same answer of short answer type, very short answer type, question number 2. Question number 6, how does oxygen help in releasing energy from the food? Oxygen breakdowns glucose into carbon dioxide in water and energy is released. Question number 7, differentiate between aerobic and anaerobic respiration. The table is given in your book on page number 62. From there you can note down. Question number 8, explain the following respiratory diseases. What is flu? A flu or influenza is a viral infection that affects the respiratory system, causing symptoms like fever, cough and muscle aches. Next is lung cancer. So it occurs when damaged cell increases and kills the healthy cells in the lungs. It is painful and difficult to breathe and causes to death. Next is asthma. Asthma is a chronic respiratory condition characterized by inflammation and narrowing the airways, leading to difficulty in breathing and coughing. Right, children? So these are your short answer type question. Next is long answer type question. So these answers needs to be answered by yourself. Right? So that's it for this chapter. We will meet in the next class of science. Till then, bye and take care.